یہ شام کا وقت تھا جب میں گھر داخل ہوا تو گھر سے بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید میری بیوی تیار ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری شادی کو ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے۔ میں اپنی بیوی کے کمرے میں گیا، مگر ہمارے کمرے کی تو روشنی بند تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ غسل خانے میں شاید میری بیوی وضو کر رہی تھی۔ میں وہاں سے باہر آیا تو دیکھا یہ خوشبو تو اماں کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں حیران ہو گیا تھا۔ میری اماں پہلے بھی تیار ہوتی تھی، پر اب ان کے شوق کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے تھے۔ میں اماں کے کمرے میں گیا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی زیورات پہن رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں چونک سا گیا تھا۔ آج تو اماں اپنی عمر سے بہت کم لگ رہی تھی۔ ان کی عمر 50 کے قریب تھی، مگر ابھی وہ صرف 40 سال کی بھی نہیں لگتی تھی۔ میں یہ دیکھ کر خوش بھی ہوا تھا، کیونکہ میری ماں کو بیوہ ہوئے 2 سال گزر چکے تھے، اور بیوہ عورت خود کو بالکل ہی مار کر اپنی زندگی کسی مردہ روح کی طرح گزارنا شروع کر دیتی ہے۔ مجھے یہ چیز پسند نہیں تھی، سو اماں کو سجا سنورا دیکھ کر مجھے خوشی ہونے لگی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اماں شاید کسی گھر میں ڈنر کے لیے جا رہی ہیں۔ دعوت پر جانا تو ہمارے لیے کافی زیادہ معمولی بات ہو چکی تھی، کیونکہ میری بیوی صبا اور اماں اکثر لوگوں کے گھر دعوتوں پر جایا کرتے تھے، پر میری بیوی تیار نہیں تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ کہاں کے لیے تیار ہو رہی ہیں؟ اماں نے کہا کہ آج میں تم دونوں کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلی کہیں جا رہی ہوں۔ اماں کا یہ انداز دیکھ کر میں بھی چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے اماں، آپ ضرور جائیں، ضرور کسی کے ہاں دعوت ہوگی۔ ہاں بیٹا، بس ایسا ہی سمجھو، میں رات کو 10-11 بجے تک آ جاؤں گی، تم لوگ میرا انتظار نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر اماں کی جوتیوں کی ٹک ٹک کی آواز آئی اور وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں ان کے پیچھے نہیں گیا، لیکن اتنے میں میرے کمرے میں میری بیوی آ گئی۔ اس نے آتے ہی ایسی بات بولی کہ میرا دماغ گھوم گیا۔ جانتے ہو رجب کہ تمہاری ماں کہاں گئی ہے؟ تم اپنی ماں سے ذرا بھی نہیں پوچھتے کہ وہ کہاں جاتی ہیں؟ میں اپنی بیوی صبا کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میں نے اسی حیرانی میں اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اماں ظاہر ہے کسی دعوت میں جا رہی ہوں گی، لیکن تمہیں یہ بات کرنے کا تو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ وہ میری ماں ہے اور تم میری بیوی ہو۔ وہ خود مختار ہیں اور تم پر میرا اختیار ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں یہ باتیں کرنے کی؟ ہاں تو کیا ہوا؟ کیا سارا اسلام تمہاری بیوی کے لیے ہی ہے؟ تمہاری ماں مغرب کے وقت تیار ہو کر کہاں جا رہی ہے؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ آخر تمہاری ماں اتنی بوڑھی بھی نہیں لگتی۔ اس کی سج دھج سے لگتا ہے کہ وہ کسی سے ملنے جا رہی ہوں۔ وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی عام شخص سے ملنے کے لیے تمہاری ماں کو اتنا سجنے سورنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ صبا کی بات سن کر میرا تو دماغ خراب ہو گیا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایک لفظ اور نہیں بولنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی میں اور صبا یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میری اماں کمرے میں داخل ہو گئی۔ میری اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، میں تو اپنا پرس بھول گئی تھی، کمرے میں وہ لینے کے لیے آئی تھی، لیکن میں نے صبا کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ صبا بیٹی، میں تو تمہیں اپنے بچوں جیسا سمجھتی ہوں، بھلا کوئی اپنی ماں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے؟ اماں فوراً سے آنسو بہانے لگی۔ مجھے سخت شرمندگی ہونے لگی کہ اماں نے یہ ساری باتیں سن لی تھی، پر پتہ نہیں میری بیوی پر کیا بھوت سوار تھا۔ وہ تو بولتے ہی چلی جا رہی تھی، تو میں نے کون سی غلط بات بول دی ہے؟ اماں، پردہ تو سب عورتوں پر برابر میں فرض ہے، جیسا آپ پر ویسا ہی مجھ پر بھی فرض ہے، تو آپ اتنی خوشبو لگا کر رات کے اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، بس میری بیوی نے یہ کہنا تھا کہ میں نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ فوراً میری ماں سے معافی مانگو۔ معافی کیوں مانگوں؟ میں نے انہیں خود کل ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ میں نے اس کے منہ پر مزید ایک تماچا جڑ دیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا تو وہ میرے پاؤں میں گر گئی اور بولے کہ خدا کے لیے ایک بار بھی یہ لفظ دوبارہ مت کہنا۔ اگر آپ نے 3 بار یہ لفظ بول دیا تو میری زندگی اجڑ جائے گی۔ میں آپ کی اماں کے بارے میں آئندہ اور کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے لیکن کے بعد کا جملہ بھی مکمل نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میری بیوی میری ماں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھی۔ میرا غصہ حدوں کو چھو رہا تھا، پر میں تو اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ میری بیوی نے مجھے 3 طلاقیں دینے سے روک دیا تھا۔
अम्मा भी सोफे पर बैठकर रोने लगी कि बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेवकी के बाद लोग मुझ पर इतना शक करेंगे। औरत का जब शोहर मर जाता है तो लोग यही समझते हैं कि अब उस औरत का अपनी जिंदगी पर कोई हक नहीं है, वो बस ऐसे जिए कि जैसे जिंदा ही नहीं। मैं तो अपना दिल बहलाने के लिए ये सब करती हूँ। मैं तो अपनी दोस्तों के साथ दावत पर जा रही थी, पर तुम लोगों की लड़ाई की वजह से सख्त दुखी हो गई हूँ। अब मैं कहीं नहीं जा रही। बेटा, तुम जाओ अपनी बीवी को उसके घर छोड़ आओ। तुम उसे तलाक दे चुके हो, अब तुम रुजू करने के बाद ही उससे मिल सकते हो। वैसे भी ऐसे हालात में तुम दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं है। मेरी माँ की बात बिल्कुल सही थी। मियाँ बीवी लड़ाई के वक्त एक दूसरे के साथ रहें तो उनकी जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाती है। अम्मा की ये बात बिल्कुल सही थी। सबा भी अभी मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। उसके सर पर एक तो लफ्ज तलाक सवार था, दूसरा मैं अपने दिल में बहुत ज्यादा निदामत महसूस कर रहा था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरी बीवी और मेरे दरमियान नफरत मजीद बढ़े। उसने मेरी माँ पर जो इल्जाम लगाया था वो तो मुझे अभी भी हजम नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि अपनी बीवी को सजा देने और सबक सिखाने का ये एक मौका भी है। इसी बहाने वो भी बहुत सारी बातें समझ जाएगी, सीख जाएगी। मैं अपने दिल में यही बात रखे अपनी बीवी सबा का बैग उठाकर बाहर आ गया था। वो भी चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। मैं उसे उसके अब्बा के घर ले गया। सबा का चेहरा रोता रोता सा था, पर उसने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि मैं और अम्मा कुछ दिन के लिए अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए सबा को आपके घर छोड़ रहे हैं। गांव की जिंदगी के बारे में सबा कुछ नहीं जानती, ना ही वहां हमारे रिश्तेदारों से बातचीत कर पाएगी। ऐसे में खामखा इसके जहन पर एक बोझ सवार होगा। बेहतर है कि आप लोग इसे कुछ दिन अपने घर रख लें। मैं सबा को छोड़कर घर वापस आया तो घर में अजीब सी खामोशी और वीरानी थी। उसके बगैर घर बहुत सूना सूना सा लग रहा था। मगर उसने मेरी माँ के किरदार पर और उसकी इज्जत पर हमला किया था। मैं किसी सूरत भी अपनी बेवा माँ के खिलाफ कोई लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप अपनी अम्मा के कमरे में चला गया, मगर जैसे ही अम्मा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उनका दरवाजा बंद था। मैं समझ गया कि अम्मा भी इस बात से सख्त परेशान हो गई हैं, मगर दिल पता नहीं क्यों अपनी बीवी की तरफ खींचा चला जा रहा था। बहरहाल मैं अपने कमरे में आया तो मुझे सबा की याद आने लगी, सख्त याद सताने लगी थी। सोचा कि उसे फोन कर लूं, उससे माजरत करूं या उसका हाल चाल पूछूं, उससे माफी मांग लूं, लेकिन मैं इतना बड़ा दिल नहीं कर सकता था। उसने जो कुछ कहा था मेरी माँ को, उसके बाद तो मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। पर कहते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि इंसान कभी एक दूसरे से नाराज होकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। जिंदगी तो दूर की बात, एक दिन नहीं गुजरता। मेरी रात तो जैसे आंखों में ही कट गई थी। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आती, मगर फिर आंख खुल जाती थी। आज अपना बिस्तर खाली देखकर मुझे सबा की सख्त याद आ रही थी, क्योंकि उसका मुस्कुराता चेहरा हमेशा मेरे पहलू में चमकता रहता था। यूं ही जागते जागते कब फजर का वक्त हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मुझे उस वक्त अम्मा की भी याद आ रही थी। फजर के वक्त में उठकर अपने कमरे से बाहर आ गया। मैं उस वक्त वुजू करके नमाज पढ़ना चाहता था। इसी वजह से मैं मस्जिद जाने के लिए अपने कमरे से बाहर आया तो मुझे अपनी अम्मा के कमरे में रोशनी दिखाई दी। मैं हैरान हुआ। अम्मा तो इस वक्त कभी भी नहीं जागती थी। वो हमेशा मुझे यही कहती थी कि बेटा, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़कर सो जाती हूँ, उसी के साथ फजर के 2 फर्ज भी अदा कर लेती हूँ। मैं तो अम्मा की उन्हीं बातों को सच मानता था, पर अभी उनके कमरे से आती रोशनी देखकर मैंने सोचा कि वो भी नमाज के लिए उठी हैं। तभी मैं अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने देखा कि वो उसी तरह तैयार खड़ी थी। उन्होंने भड़कीला लिबास पहना था और जेवर भी अपने तन पर सजा रखा था। मैं ये देखकर हैरान हो गया कि आखिर अम्मा ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, वो भी फजर के इस वक्त। मुझे तो अम्मा की ज़हनी हालत पर शक होने लगा था, मगर फिर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अम्मा अपने कमरे से बाहर निकल आईं। मेरे जहन में अपनी बीवी की बातें गूंजने लगी। भले मैं अपनी अम्मा पर शक तो नहीं करता था, लेकिन जो कुछ अम्मा की हालत बता रही थी वो बड़ी ही अजीब सी थी। खैर, मैं अम्मा के पीछे पीछे आ गया। उन्होंने मुझे देखा नहीं था। मैं पहले सोच रहा था कि वो खुद को यूं ही शीशे में देख रही हैं, पर ऐसा नहीं था। अम्मा कमरे से दबे कदमों बाहर आई थी और फिर साथ ही घर का मेन दरवाजा खोलकर बाहर जा खड़ी हुई, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। 2-4 लम्हे ही गुजरे थे कि एक गाड़ी आकर हमारे घर के बाहर रुकी।
मैं अपनी गाड़ी तो उस वक्त स्टार्ट नहीं कर सकता था। मैं चाहता था कि मैं देखूं अम्मा कहाँ जाती हैं, कि तभी अम्मा उस गाड़ी में बैठी और ये जा वो जा। उस वक्त मुझे घर का दरवाजा खोलते बहुत सा वक्त लग सकता था, इसलिए मैं चुपचाप वापस आ गया। मैं तो अम्मा का पीछा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अम्मा जिस गाड़ी में बैठकर गई थी उसकी रफ्तार काफी तेज थी। खैर, मैंने सोचा कि अम्मा जब वापस आएंगी तो मैं उनसे पूछूंगा कि वो कहाँ गई थी। लेकिन फिर अजीब सी बात ये हुई कि अम्मा 10 बजे के करीब जब घर वापस आई तो उनका हुलिया बिल्कुल सादा सा था। ऐसा लगता था कि अम्मा घर से भी इसी हुलिये में गई हैं। उनके साथ एक बड़ा सा शापर था, शायद उसमें वो कपड़े थे जो वो घर से पहनकर गई थी। साफ लग रहा था कि अम्मा मेरी नजरों में साफ रहने के लिए, मेरे सवालों से बचने के लिए ऐसी हरकत कर रही हैं। मुझे अपनी माँ पर अब शक होने लगा था कि मेरी माँ इतने सारे कपड़े और जेवरात पहनकर कहाँ गई थी। मैंने अम्मा से पूछा कि आप कहाँ गई थी, तो कहने लगी कि ये पड़ोस में ही गई थी, पड़ोसन के साथ बाजार भी चली गई थी। तो देर हो गई, बेटा तुम उठ गए, तुम्हारे लिए मैं नाश्ता बना देती हूँ। उस वक्त मुझे अम्मा के किरदार से सख्त नफरत होने लगी थी, क्योंकि एक माँ होकर उन्हें ये सब कुछ नहीं जचता था। और ये बात तो अब साबित हो गई थी कि मेरी बीवी झूठ नहीं बोल रही थी। यकीनन वो तो सच ही बोल रही थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं जरूर अपनी बीवी के पास जाऊंगा, उसे मनाकर वापस घर ले आऊंगा। मुझे अम्मा की वजह से उसे इतने बुरे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी माँ भी कोई दूध से धुली हुई नहीं थी। पता नहीं क्यों मुझे अम्मा से एकदम नफरत सी महसूस होने लगी थी। फिर याद आया कि अपनी बीवी को तो ये कहकर वहाँ छोड़ाया था कि मैं और मेरी अम्मा गाँव जा रही हैं, तो मैं अपने ससुरालियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो भी सोचेंगे कि मैं शायद झूठ बोलने का आदी हूँ। इसी वजह से मैं चुपचाप मस्जिद चला गया था। आजकल मुझे अल्लाह की बहुत याद आने लगी थी। मैं अपने रब को याद करता तो मेरे सारे काम जैसे मेरे कंधे से उतर जाते थे। इसी वजह से मैं मगरिब के टाइम से कुछ पहले मस्जिद की तरफ चला गया था। मैं चाहता था कि मैं जाकर अपने रब को याद करूं। कहते हैं कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ऐसे तैसे मौजज़े कर देता है कि इंसान को खुद अपनी हकीकत पर यकीन नहीं आता, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं मस्जिद पहुंचा तो नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ बैठा हुआ है। हालांकि वो वक्त नमाज का नहीं था, मगरिब से जरा पहले का वक्त था। मैं तो नवाफिल अदा करके अपने रब से मदद मांग रहा था। कुरान मजीद में भी है कि अपने रब से सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो। सो मैं भी ऐसा ही कर रहा था कि मेरी नजर इमाम मस्जिद पर पड़ी, जो कि मेरे साथ ही बैठे हुए थे। सलाम फेरकर मैंने उनसे सलाम दुआ की तो वो मेरी आंखों में झांकने लगे। उनके अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हों। मैं खटक गया था। उन्हें देखकर मेरा जहन उलझने लगा था, लेकिन साथ ही साथ दिल में एक इत्मीनान भी था कि इमाम साहब मुझे जो भी बात बताएंगे यकीनन वो सही होगी। इमाम साहब ने मेरे पूछे बिना मुझसे जो बात कही तो मैं हैरान रह गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह वाले इस कदर भी पहुंचे हुए हो सकते हैं कि किसी की दिल की कैफियत का अंदाजा उन्हें मामूली सी बात से हो जाए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़ी उलझन का शिकार हो। बाज़ औक़ात सच उस वक्त तक इंसान के सामने नहीं आता जब तक अल्लाह नहीं चाहता। तुम अपनी माँ को लेकर उम्रा करने चले जाओ, वहाँ पर सारी हकीकत तुम पर आया हो जाएगी। जो सच तुमसे छुपे हैं और जो उलझन तुम्हारे जहन में है वो सब तुम्हारे सामने आ जाएगी। इसी बहाने तुम्हारा मैला दिल भी साफ होगा, दुनिया की मोहब्बत भी दिल से निकल आएगी, बाकी मामलात भी साफ हो जाएंगे। बेटा अपनी माँ को लेकर उम्रे पर चले जाओ, वहाँ सारी हकीकत खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं इमाम साहब की बात सुनकर दंग रह गया था कि वो मेरे दिल की हालत से कैसे वाकिफ हैं, या शायद ये बात उन्होंने अंदाजे में कह दी होगी। मेरा दिल तो सोचता रह गया, पर उनकी ये बात गलत नहीं थी। मेरे पास दौलत की कमी नहीं थी कि मैं उम्रा करने से रुक जाता। वैसे भी अब्बा ने अपने पीछे बहुत सारी दौलत छोड़ी थी। अब जबकि मेरा रुझान मजहब की तरफ ही हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात पर अमल कर लिया जाए, क्योंकि मैं वाकई में उम्रा करूं और जाकर अल्लाह से ना सिर्फ अपने गुनाहों की माफी मांगूं, बल्कि अपने रब से इस सच को दिखाने की तमन्ना भी करूं जिसकी पोशीदगी ने मेरे जहन को उलझा रखा था। कि मैंने घर जाकर अम्मा से कहा कि अम्मा हम उम्रा करने जा रहे हैं,
आप भी तैयार हो जाएं। अम्मा को ये बात बड़ी अजीब लगी। कहने लगी कि इस वक्त उम्रा करने की क्या जरूरत है। मैंने उन्हें और कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो फिर मैं अकेला ही चला जाऊंगा। माँ जैसी भी हो, अपने बेटे से तो मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ जाती है, उसके लिए कुछ भी कर सकती है। अम्मा भी तैयार हो गई, बोली कि ठीक है बेटा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हारे साथ ना सिर्फ उम्रे पर चलूंगी बल्कि तुम्हारी बीवी को भी मनाकर घर ले आऊंगी। अम्मा की बातें बड़ी खुशाइन थी। मैंने दिल में सोचा कि मैं अम्मा को लेकर उम्रे पर चला जाता हूँ, और बार बार मुझे मुफ्ती साहब की भी बात याद आ रही थी। खुशकिस्मती से मेरा एक जानने वाला ट्रैवल एजेंट था, उसे बताकर मैंने अपने उम्रे का बंदोबस्त जल्द ही कर लिया। अम्मा को लेकर जाने का वक्त बड़ी ही जल्दी मिल गया था। शायद ये भी मेरी खुशकिस्मती थी कि अल्लाह ताला मुझे वो हकीकत दिखाना चाहते थे जिससे मैं ना आशना था। मगर जैसे ही हम लोग उम्रे के सफर पर रवाना हुए, मेरी अम्मा के तो रंग ही बदलने लगे। मुझसे कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, ये बात बहुत जरूरी है। आज से पहले कभी मैंने ये बात तुमसे नहीं की थी, पर आज ये बात करना जरूरी हो गया है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वो एक हवाई सफर है। सफर तो मौत के बराबर होता है, मौत की सवारी होता है। मैं नहीं चाहती कि हम लोगों के दरमियान कोई ऐसी बात हो जिस पर तुम्हें यकीन ना हो या फिर तुम मुझ पर शक करो। बेटा, बात दरअसल कुछ यूं है कि तुम मुझे शायद गलत समझने लग गए हो। तुम्हें ये लगता होगा कि तुम्हारी माँ ही गुनहगार है। क्या पता तुम मुझे उम्रा करवाने भी इसीलिए लेकर आए हो कि तुम्हारी माँ गुनहगार है, उसके गुनाह धुल जाएं, साफ हो जाएं। पर बेटा, बात तो दरअसल कुछ और है। मैंने आज से पहले तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब मैं बताना फर्ज समझती हूँ, क्योंकि शायद तुम्हारे दिल में अपनी बीवी की बहुत ज्यादा हमदर्दी जाग रही है। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी बेवा माँ पर इल्जाम लगाया, उस वक्त भी तुम्हारी माँ खामोश रही। मैं नहीं चाहती थी कि घर में दंगा फसाद हो। वो तो तुमने खुद अपनी माँ की मोहब्बत में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी, उसे उसकी हैसियत बता दी। लेकिन बेटा, तुमने ये तो सोचा ही नहीं कि तुम्हारी माँ सही है या गलत। ये भी तो हो सकता है कि गलती तुम्हारी बीवी में हो, खामी उसमें हो, और तुम अपनी माँ को गलत समझ रहे हो। अम्मा की बात सुनकर मैं चौंक कर रह गया था। हम तो जब मक्का मदीना पहुंच गए तो अम्मा ने मुझे एक और बात बताई, जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अम्मा ने मुझसे कहा कि मैं इस पाक सरजमीन की कसम खाकर कहती हूँ, जो कुछ तुम्हारी बीवी ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया वो खुद उसकी जात का हिस्सा है। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। अम्मा, ये कैसे हो सकता है? जिस बीवी पर मैं इतना भरोसा करता हूँ वो कैसे मुझे धोखा दे सकती है? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। बेटा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं एक जहां दीदा औरत हूँ, और शायद तुम अभी इस बात को नहीं समझते, लेकिन अक्सर पाक साफ मासूम चेहरे वाली औरतें ही सबसे ज्यादा घिनौने किरदार की मालिक होती हैं। तुम अपनी बीवी को बहुत मासूम और पारसा समझते हो, मगर असल में ऐसा नहीं है। तुम्हारी बीवी को मैंने कई बार तुम्हारी गैर मौजूदगी में बनाओ सिंगार करके खुशबू लगाकर घर से बाहर जाते देखा है। मैं खामोश इसलिए रही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मियाँ बीवी के रिश्ते में कहीं दरार आए। वैसे भी कहते हैं कि मियाँ बीवी को लड़ाने वाला शैतान होता है। मैं शैतान का किरदार अदा नहीं करना चाहती थी बेटा, और देख लेना, तुम्हारे सामने मैं शैतान को 21 नहीं बल्कि इससे 3 गुना ज्यादा कंकरियां मारूंगी। खुदा मुझे तबाहो हलाक करे अगर मैं झूठ बोलूं। तो मैं अम्मा के चेहरे की तरफ देखकर हैरान रह गया था। अम्मा के चेहरे पर तो बिल्कुल ही कुछ और नजर आ रहा था, लेकिन मुझे सबसे पहले इमाम साहब की बात याद आ रही थी कि अल्लाह मुझे सच दिखाएगा, वो सच जिससे मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। मैं जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहता था, मगर अम्मा ने मुझे बड़ा जज्बाती कर दिया। कहने लगी कि बस बेटा, तुम अपनी बीवी को जल्दी से 3 तलाकें देकर फारिग कर दो। तुम्हारी माँ ने इस पाक सरजमीन पर आकर तुम्हारी बीवी के खिलाफ गवाही दे दी है। उसके किरदार पर जो भी बात मैंने की है वो हूबहू सच है। बेटा, ऐसा तो कोई काफिर ही करेगा कि ऐसी सरजमीन पर आकर झूठ बोले। मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वो मान लो। तुम्हारी बीवी के न सिर्फ गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात थे, बल्कि वो तुम्हारा माल भी बेचकर खा रही थी। मैंने तो उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन अब तुम अच्छाई और भलाई की तरफ एक कदम बढ़ा ही चुके हो, तो सारे कदम मुकम्मल करके मंजिल पर पहुंच जाओ। बेटा, मुझे तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि जीत सच की हो।
अगर तुम्हारी बीवी यूं ही झूठ बोलती रही तो एक दिन आएगा कि तुम अपनी माँ से बिल्कुल दूर हो जाओगे। मैं अपनी माँ की बातें सुनकर मुकम्मल तौर पर इस बात पर कायल हो चुका था कि मेरी बीवी ही गलत है। मैं तो उसके इस रूप से वाकिफ ही नहीं था। मैंने तो हमेशा उसे पाक और पारसा ही समझा था, मगर जिंदगी मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा करेगी, ये मेरी समझ से बाहर था। ये बात तो मेरी तवक्कात से बिल्कुल हटकर थी। मैं अपनी बीवी से राब्ता करना चाहता था, लेकिन अम्मा ने इस पाक सरजमीन पर आकर ये गवाही दे दी थी, तो मैं कैसे उनकी बात को रद्द करता। मैंने कहा कि बस ठीक है अम्मा, कल उम्रे के बाद आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि एक बार अपनी जिंदगी की नेक शुरुआत कर लूँ, उसके बाद उसे भी अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। आप फिक्र नहीं करें। मैंने अपनी माँ से कोई सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि जाहिर है वो इस पाक सरजमीन पर आकर झूठ नहीं बोल सकती थी। अगले ही दिन हम उम्रे की नीयत से अपने होटल से निकले। रास्ते में जो वाकया हुआ उसने मुझे सच दिखा दिया। मैं तो जिसे सच समझा था वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ था। हरम में दाखिल होते ही मेरी अम्मा का पाँव फिसला। अमूमन ऐसा लोगों के साथ हो ही जाता है, वो भी बूढ़े बुजुर्गों के साथ, मगर ये वाकया बड़ा मुख्तलिफ था। जमीन पर पाँव फिसलते ही अम्मा दूर जाकर गिरी। उनको चोट ऐसी आई थी कि उन्हें मुझे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। वहाँ जाकर पता चला उन्हें तो टांग का फालिज हो गया है। बस ये सुनना था कि अम्मा का मुंह खुल गया, उससे बस सच के अलावा कुछ बाहर न आया। अम्मा रो रो कर मेरे आगे हाथ जोड़कर माफिया मांगने लगी। बेटा मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अम्मा के मुंह से ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। अम्मा, आपकी टांग टूट गई है, आपको फालिज हो गया है, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश में डाला है। आजमाइशें भी नेक लोगों पर ही आती हैं। मैं तो अपनी माँ को सहारा दे रहा था कि वो रोने लगी। नहीं नहीं बेटा, मैं नेक नहीं हूँ, मैं गुनहगार हूँ। मैंने एक पाकबाज औरत पर अपने गुनाहों का इल्जाम लगा दिया। जो कुछ मैं करती थी वो सब इल्जाम मैंने तुम्हारी बीवी पर लगाकर बहुत गलत किया। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारी माँ कहलाऊं। अम्मा के मुंह से उनके गुनाहों के इतराफात सुनकर मेरा तो वजूद लरस गया था। सोचने लगा कि अल्लाह पाक ने मुझे कितनी बड़ी गलती करने से बचा लिया। अम्मा की सारी बातें सुनकर मेरे जहन के ताले खुल गए। सोचा नहीं था कि मेरे सामने ये सच आएगा। मौलवी साहब ने सच्ची कहा था कि इंसान जब अल्लाह के सामने झुकता है उसके मसाइल हल हो जाते हैं, वरना तो वो एक दायरे में उलझता चला जाता है, गंभीर होता चला जाता है। आप सबसे भी यही कहूँगा कि जिंदगी में जो भी उलझन है, उम्रे पे नहीं भी जा सकते तो नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह आपकी ऐसी सुनेगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। ये बात मेरी आजमाई हुई है, क्योंकि कोई भी शख्स इतने बड़े सच से पर्दा खुद नहीं उठा सकता। ये काम बेशक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही कर सकते हैं।